आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। इट्स अ privilege for me that I can be present here once again with my second part of the sermon that I have taken last week, weighing and uh, found wanting. So that is based on Daniel chapter 5. So let's pray before we go into our message. Our Father in heaven, we are so thankful for giving us this privilege of sharing the Word of God with the people who are in my uh, channel, YouTube channel. I want to thank you for everything you do for us. Fill me with the Holy Spirit. What I speak is your word and not my word. May many more will be able to join this YouTube channel of mine and be blessed by the message that you are helping me to put on my YouTube channel. Thank you, God, for I ask these few blessings in Jesus' name. Amen. जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पार्ट सेकंड जो है आज मैं उसके साथ आई हूँ। और मैं पहला पार्ट मैंने पिछले हफ्ते दिखाया पढ़ा था हमने डैनियल के बारे में और बेलशाज़र के बारे में, जो कि नेबूकदनेस्सर का पोता था। तो यहाँ पे जब हम पहला पार्ट जब हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि उसने मंदिर के जितने भी बर्तन थे यरूशलेम से जो लाए थे वो उसने लेकर आया, ऑर्डर किया उनको मंगाने का, और उसमें उन्होंने मधु या दाखरस पिया। We saw in the first part of this Ved and wanting that how Belshazzar had a great feast. It continued for many months, and therefore when it was on the verge of ending, he called for the temple vessels to be brought so that they could put liquor in that and make use of it. So they were in that drunken state, and therefore he wanted to make the people very happy. Now, these vessels had been brought by Nebuchadnezzar from the temple in Jerusalem. And these were the holy vessels, dishes, which were put in the temple over there by King Solomon. And Nebuchadnezzar had brought all those and he was keeping it very safely in his storehouse. But Belshazzar, looking at all his guests, he wanted that these temple dishes be brought and they should be drinking, having the honor of drinking the alcohol in that. ये दिखाना मांगता था अपने लोगों को कि देखो, ये सोने चांदी के जो पात्र हैं उसमें हम मदिरा पिएंगे। और ये जो पात्र जो थे सोने चांदी के, ये यरूशलेम के मंदिर से सोलोमन राजा के समय में रखे गए थे और वो नबूकदनेस्सर लेकर आ गया था और उसने बड़े संभाल के रखे थे। लेकिन बेलशाज़र ने उनको मंगाया और उसमें जो है मदिरा पीना शुरू किया। सो दिस वाज व्हाट वाज वी सॉ इट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेड एंड वांटिंग। ये वेड एंड वांटिंग जब तराजू में तोला गया और कम पाया गया, इसमें हमने पहले पार्ट में ये देखा। यहाँ पे कहें, बट ऑल्दो बेल्शाज़र न्यू ऑल अबाउट द हैपनिंग्स इन द लाइफ ऑफ नेबुकदनेस्सर हिज ग्रैंडफादर, it made no impression on his pride. Defiantly, he returned to the worship of idols and all the pagan festivals. Under his foolish rule, mighty Babylon, built at so great an effort by his fathers, was soon to fall. I, Belshazzar, the king, made a great feast to 1,000 of his lords and drank wine before the 1,000. यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो बेलशाजर जो था नबूकदनेस्सर का पोता, इसने बड़े घमंड के साथ, बहुत ही उसके साथ दिखाने के लिए मंदिर के पात्र मंगाए। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी या फुलिशनेस थी, मूर्खता थी जो उसने की। और उसे मालूम था कि नबूकदनेस्सर के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। After knowing all that had gone through the life of Nebuchadnezzar, Belshazzar never learnt his lesson. Belshazzar ने अपना सबक नहीं सीखा
और उसने बहुत बड़ी फीस तैयार की थी। और ये जो है मंदिर के बर्तनों में उसने मंगाए, और उसमें जो है ये क्या करना मांग रहा था, उसमें मदिरा अपने जो लॉर्ड्स जो थे, जो उसके राज्य के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो इधर उधर से आए थे, आसपास के राजा लोग, उनको अपनी शान दिखाने के लिए मंदिर के पात्र उसने मंगाए, और उसमें जो है उनको वो मदिरा उसने पिलाई। ही gave them the vessels from the temple and made them to drink the wine from there. Now, when we look at here, uh, there is now when he is while he was in the drunken state, he sees a finger on the wall writing something on the wall. अपने शराब के धुत में वो देखता है कि दीवार पे एक हाथ आ रहा है और उंगली से कुछ लिखा जा रहा है, और वो बड़ा परेशान हो जाता है। And he calls for all his lords and magicians and all those wise men and all, and asks them, tell me the meaning of this. But none of them were able to tell. अपने जितने भी राज्य के लोग थे उनको ये बुलाता है और कहता है कि मुझे इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है, और मैं उसको बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन जब रानी ने ये सुनती है तो रानी आती है और वो बताती है उसको कि ये जितने भी तेरे रिश्ते, ये जो मैजिशियन, जादूगर, जादू टोने वाले जो हैं, ये तुझे कुछ नहीं बता पाएंगे। सिर्फ एक डैनियल ही है जो ऐसा कर सकता है। देयर इज अ मैन इन योर किंगडम, ही हैज द स्पिरिट ऑफ द होली गॉड्स। In the days of your father, in his days of his father, he was found to have insight, intelligence, and wisdom like that of the gods. Your father, King Nebuchadnezzar, appointed him chief of the magicians, enchanters, astrologers, and diviners. Your own father, the king Daniel. Okay. देख, तेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा बसती है। तेरे पिता के दिनों में इस व्यक्ति ने ये दर्शाया था कि वह रहस्य को समझ सकता है। उसने ये दिखा दिया था कि वह बहुत चुस्त और बुद्धिमान है। उसने ये प्रकट कर दिया था कि इन बातों में वह ईश्वर के समान है। तेरे दादा राजा नबूकदनेस्सर ने इस व्यक्ति को सभी बुद्धिमान पुरुषों पे मुखिया नियुक्त किया था। वह सभी तांत्रिक और कसदियों पर हुकूमत करता था। Now this queen is telling Belshazzar, your your grandfather was the one who had taken the help of Daniel to narrate the meaning of the statue that he had seen. And each time he was calling him, he was the chief of all the magicians and wise men. ये जो डैनियल है, इसमें परमेश्वर की आत्मा बसती है, और तेरे पिता यानी कि तेरे दादा ने उसको जितने भी इस राज्य के बुद्धिमान लोग थे उन सबका मुखिया नियुक्त किया था। Now she is trying to lead him to indirectly to God. She's trying to tell him Daniel is the person who believes in God and who only can tell the meaning of these words written on the wall. No other person is going to say. So indirectly, this lady is trying to praise the God of heaven through Daniel, because she says the Spirit of God dwells in Daniel. वो कहती परमेश्वर का आत्मा दानियल के मन में है, वो ही तुझे ये समझा सकता है। अगर देखा जाए तो वो परमेश्वर की महिमा कर रही थी दानियल का नाम लेके, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो है वो आत्मा दानियल में बसी थी। एक रानी जो है इसको बता रही है कि किसके मन में परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर का वो नाम ले रही है। She was taking the name of God, praising him, telling him that God's spirit dwells in the heart of Daniel, and he would only be able to tell the meaning of this writings on the wall.
This was because an extraordinary spirit, knowledge, and insight, interpretation of dreams, explanation of enigmas, and solving of difficult problems are found in this Daniel, whom the king named Belshazzar. Let Daniel now be summoned, and he will declare the interpretation. मैं जिस व्यक्ति के बारे में बातें कर रही हूँ उसका नाम दानियल है, किंतु राजा ने उसे बेलशाजर का नाम दिया था। बेलशाजर बहुत चुस्त और बहुत सी बातें जानता है। वह सपनों की व्याख्या कर सकता है, पहेलियों को समझा सकता है और कठिन से कठिन हलों को समझा सकता है। तू दानियल को बुला, दीवार पर जो लिखा है उसका अर्थ तुझे वही बताएगा। She is guiding him to call Daniel. And he says, Daniel is the only person who will be able to tell you the meaning of the writings on the wall. His name is Daniel, but your father called him Belshazzar. And therefore, he is known as Belshazzar. So you call him now. The queen is telling, रानी बता रही है कि तू दानियल को बुला ले और वो तेरे इसका जो लिखा हुआ है उसका जो जवाब है वो दानियल तुझे दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। जितने भी तेरे राज्य में हैं ये बुद्धिमान लोग कोई नहीं बता पाएगा। I have heard of thee that Spirit of God is in you, and that light and understanding and excellent wisdom are found in you. मैंने सुना है कि ईश्वरों की आत्मा का तुझ में निवास है, और मैंने ये भी सुना है कि तू रहस्यों को समझता है, तू बहुत चुस्त और बुद्धिमान है। Now Belshazzar is trying to know. I'm sure he knew that Daniel is the main person who can solve all the problems, as he was able to do the interpretations of the dream of King Nebuchadnezzar. He also had warned him, and then how his grandfather was punished. So when we look at here, ये कह रहा कि मुझे सुना है, क्योंकि इसने सुना है, इसने अपने दादा से सुना था कि दानियल जो है बहुत बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पे रानी बता रही तो रानी का वह शब्द कह रही मैंने सुना है कि तुझ में तू बहुत चुस्त है और परमेश्वर की आत्मा तुझ में बसती है। बट आई हैव हर्ड ऑफ यू दैट यू कैन गिव इंटरप्रिटेशन। मैंने सुना है कि तू समझा सकता है और शक दूर कर सकता, डिसॉल्व डाउट्स। नाउ इफ यू कैन रीड द राइटिंग एंड मेक नोन टू मी its interpretation, you shall be clothed with purple and have a chain of gold around your neck and shall be third ruler in the kingdom. मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू बातों के अर्थ की व्याख्या कर सकता है और तू अत्यंत कठिन समस्याओं के उत्तर भी ढूंढ सकता है। यदि दीवार की इस लिखावट को तू पढ़ दे, इसका अर्थ तो मुझे समझा दे, तो मैं तुझे ये वस्तुएं दूंगा। मैं तुझे बैंगनी रंग की पोशाक प्रदान करूंगा, तेरे गले में सोने का हार पहनाऊंगा, फिर तो तू इस राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शासक बन जाएगा। He is trying to reward him. He says, I know you will be able to tell. I will clothe you with a royal, kingly robe that is purple color, and I will put a chain around your neck, and then you will be the third ruler in my kingdom. वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तू इसकी व्याख्या कर सकता, समझा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुझ में है। यदि तू इस दीवार पे लिखी हुई जो शब्द है इनका मतलब मुझे समझा दे, तो मैं तुझे रॉयल पोशाक, जो राजघराने की जो पोशाक है बैंगनी रंग की, उससे तुझे मैं सजाऊंगा, तेरे गले में सोने की चेन भी डालूंगा और तू इस राज्य का तीसरा अधिकारी होगा। हम यहाँ देखते हैं कि ये डैनियल जो है कि वो इंटरेस्टेड नहीं था इसमें। यहाँ पे जाएंगे 5वें अध्याय के 17वें पद में। ये मैं जाऊंगी 17वें पद में। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात राजा को मैं पढ़ सुनाऊंगा, उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। He says, whatever you want to give me, verse 18 says, you keep it to yourself. I don't need any reward from you, but I will give you the explanation of the words written on the wall.
He is willing to give him the explanation, but before he gives the explanation, he gives him a long lecture of how his grandfather had suffered because of his pride. Now he says here, O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar your father a kingdom and majesty and glory and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages trembled and feared before him, whom he slew, and whom he would be kept alive, whom he would be set up, whom he would be putting down. But when his heart was lifted up and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne. They took his glory from him. He was driven from the sons of man, and his heart was made like the beast, and his dwelling was with the wild asses. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of man, that he appointed over it whomsoever he will. And thou, his son, Belshazzar, has not humbled thine heart, through thou knowest all this. He's telling him, your grandfather suffered, but you have not humbled yourself. He says, I'll read it in Hindi also. हे राजन, परम प्रधान परमेश्वर ने तुम्हारे दादा नबूकदनेस्सर को एक महान शक्तिशाली राजा बनाया था। परमेश्वर ने उन्हें अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाया था और बहुत से देशों के लोग और विभिन्न भाषाएं बोलने वाले नबूकदनेस्सर से डरा करते थे, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा राजा बनाया था। यदि नबूकदनेस्सर किसी को मार डालना चाहता था तो मार दिया जाता था, और यदि वो चाहता किसी को जीवित तो उसे जीवित रहने दिया जाता। यदि वह लोगों को बड़ा बनाना चाहता तो वह उन्हें बड़ा बना देता, और यदि वह चाहता कि उन्हें महत्वहीन कर दिया जाए तो उन्हें महत्वहीन भी कर देता था। किंतु नबूकदनेस्सर को अभिमान हो गया और वह हठीला बन गया, सो परमेश्वर द्वारा उससे उसकी शक्ति छीन ली गई। उसे उसके राज से, सिंहासन से उतार फेंका गया, उसे महिमा विहीन बना दिया गया। इसके बाद लोगों से दूर भाग जाने के लिए नबूकदनेस्सर को विवश किया गया। उसकी बुद्धि किसी पशु जैसी हो गई। वह जंगली गधों के बीच में रहने लगा और ढोरों की तरह घास खाता रहा। वह ओस में भीगा। अब तक उसे सबक नहीं मिल पाया। उसके तहत ऐसा ही होता गया। फिर उसे यह ज्ञान हो गया कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान परमेश्वर का ही शासन है, और साम्राज्यों के ऊपर शासन करने के लिए वह जिस किसी को भी चाहता है भेज देता है। किंतु हे बेलशाजर, तुम तो इन बातों को जानते ही हो। तुम नबूकदनेस्सर के पोते हो, किंतु फिर भी तुमने अपने आप को विनम्र नहीं बनाया। Now he's telling him, you have not humbled yourself after knowing the story of your grandfather. अपने दादा की स्टोरी को सुन के तुमने अपने अंदर जो घमंड है उसको दूर नहीं किया। He's in a way, he's warning him and he's telling him what he should have done, but he was not able to do it. He was haughty and proud. But you have exalted yourself against the Lord of heaven. Okay? परमेश्वर के खिलाफ तुम गए हो। ओके, विनम्र नहीं हुए। And they have brought the vessels of the house before you and your nobles, your wives and your concubines have been drinking wine from them, and you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, stone, which do not see, hear, or understand. But the God in those hands are your well breath, and your ways you have not glorified. इस कह रहा है, तुमने यहोवा के मंदिर के पात्रों को अपने पास लाने की आज्ञा दी, और फिर तुम्हारे शाही हकीमों ने, तुम्हारी पत्नियों ने, तुम्हारी दासियों ने उन पात्रों में दाख मधु पिया। तुमने चांदी, सोने, कांसे, लोहे, लकड़ी और पत्थर के देवताओं के गुण गाए। वे सचमुच देवता नहीं है। वे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तथा वे कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने उस परमेश्वर को आदर नहीं दिया जिसका तुम्हारे जीवन या जो कुछ तुम भी करते हो उस पर अधिकार है। ऐसे यू हैव गिवन मोर इम्पोर्टेंस टू द मैन मेड गॉड्स। चांदी सोने के जो
देवी देवता हैं, तुमने उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। परम प्रधान परमेश्वर को तुमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, और तुमने मंदिर के पात्रों में जाके आप शराब पी है। यू एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट सिन विल which God was not willing to forgive, and he had to give his judgment on that very night. God was so upset with him that he called for the vessels from the temple, and then which were brought from the Jerusalem temple, and he had the guts to give it, put wine in those dishes and give to even the concubines, the queens, the lords, the officers. He served them in that. And that was the greatest sin, which God was not willing to pardon it, because going against the will of God and worshipping somebody else who has nothing to do, who cannot see, who cannot hear, who cannot walk, who cannot do anything. Belshazzar was giving importance to them. जो देवी देवता देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको इतनी इंपॉर्टेंस थी, तो परमेश्वर क्यों चुप रहता? परमेश्वर ने अपना न्याय उसी रात को उसको दिया। यहाँ पे हम देखेंगे आगे, मैंने टेकल पर्स, देन फ्रॉम हिज प्रेजेंस he was sent. This writing was inscribed. This is the writing that was inscribed. मैंने टेकल एंड पार्सिन। सो इसलिए परमेश्वर ने उस हाथ को भेजा जिसने मैं दीवार पे लिखा। दीवार पे जो शब्द लिखे गए वे ये है, he says, God has sent the hand which came on the wall, and these are the words written by God in heaven. And so here God is giving his judgment that very night to King Belshazzar. परमेश्वर ने अपना न्याय उसी रात को बेलशाजर को दिया, जब उसकी हम देखेंगे एंड कैसा होता है। Thou art weighed in the balance and art found wanting. तराजू में तोला गया तो कम पाया गया। This is what these words mean. मैंने, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन को कम कर दिया, तेरा दिन पूरे हो गए हैं और तेरा राज्य भी खत्म हो जाएगा। टेकल, यू हैव बीन वेड ऑन द स्केल्स एंड फाउंड वॉटिंग। टेकल का मतलब है तुम्हें तराजू में तोला गया और तुम कम पाए गए। तुम्हें जिस तरीके का आदमी होना चाहते तुम वैसे नहीं है। यू हैव बीन फाउंड वांटिंग बिकॉज you have not done according to the God of heaven. Paris means your kingdom is divided and given to Medes and Persians. पेरिस का मतलब है आपका राज्य मादा फारस के लोगों को दिया जाएगा। ये चीजें जब वो सुनता है, दानियल जब उसको बताता है कि आज मेरा राज्य भी खत्म हो जाएगा, मैं तराजू में तोला गया, आई वाज weighed in the weighing balance and I am found wanting and my days are numbered, my end is coming. When somebody comes to know the end is coming, जब लोगों को पता लगा मेरा एंड आ रहा है, वो बहुत जल्दी पछताते हैं। बट ही हैड नो टाइम टू रिपेंट, उसके पास समय ही नहीं था पछतावे का। उसे तो ये लगा कि जो उसने किया वो सही है, और यहाँ पे उसने डैनियल को रॉयल इनाम दिया, मैंगनी वेशभूषा पहनाई। द रॉयल रोब was given to Daniel. The chain of gold was put around Daniel, and he was declared as the third person in his kingdom. Belshazzar gave the command. They clothed Daniel in purple, placed a gold chain around his neck, and proclaimed him the third highest ruler in the kingdom. इसके बाद बेलशाजर ने आज्ञा दी कि दानियल को बैंगनी वेशभूषा में पहनाई जाए, उसके गले में सोने का हार पहनाया जाए, और वह घोषणा की कि वह राज्य का सबसे बड़ा शासक होगा। He rewarded him for giving him the explanation of the words written on the wall, जो दीवार पे शब्द लिखे थे, और उसने उसका जब मतलब बताया, मैं जानती हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और परमेश्वर का न्याय उसी रात को
परमेश्वर ने अपना न्याय भी उसके लिए करा। यहाँ पे हम देखते हैं आगे, In that night was Belshazzar, the king of Chaldeans, slain, and Darius the Median took the kingdom, being about 62 years old. Yeah, that very night they had entered the city of Babylon, and these people were rejoicing, having the great feast of Belshazzar. They didn't know that the enemy has already entered that kingdom. उनको पता नहीं था कि दुश्मन ऑलरेडी वहां पे आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये लोग आते हैं। आइए जाएंगे अपने डैनियल में, और यहाँ पे कि उसी रात, ओके, बेल्शाज़र वाज किल्ड दैट वेरी नाइट। उसी रात बाबुल की राज प्रजा के स्वामी राजा बेल्शाज़र का वध कर दिया गया। मादे का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दारा था और जिसकी आयु 62 वर्ष की थी, वहां का नया राजा बना। दिस मीड्स एंटर्ड द किंगडम ऑफ बेबीलोन। वो बेबीलोन शहर में घुस गए। नदी का पानी का रुख उन्होंने बदल दिया, इफ्रात नदी का, और इस तरीके से वो फाटक उनके खुले हुए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि नदी के पास जो है, जो खाई बनी हुई है, उससे कोई अंदर घुस नहीं सकता, बहुत सुरक्षित है बेबीलोन। लेकिन मादा के फारस का जो राजा था दारा, वो अंदर घुसा और बेल्शाज़र को वध किया गया। परमेश्वर का न्याय मादा फारस के राजा के थ्रू हुआ। God judged Belshazzar and he was killed by the king of Medes, Darius, who was 62 years old. You know, my brothers and sisters, when we do something wrong and we go against the will of God, God will always punish us. His judgment will come upon us. परमेश्वर के खिलाफ जब हम जाते हैं और परमेश्वर की भक्ति को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का न्याय फौरन होता है। जब हम परमेश्वर के साथ जाते हैं, परमेश्वर के राज्य की लोगों में साझा करते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके वचन को माने। अगर हम उसके वचन से अपने आप को मुंह मोड़ लेते हैं और दूसरे देवी देवताओं की ओर जाते हैं, तो परमेश्वर का न्याय तो हमारे ऊपर लाजमी आएगा, जल्दी आएगा। तो आइए हम ये देखें कि हम बुराई की ओर ना बढ़ें। Let's not adopt evil in our life. Let's move where we have the right path, the path of truth and righteousness. God wants us to have this. Let's pray. Father in heaven, once again, we are so privileged that you have given me this privilege to take my message to the people. If some of them have not subscribed to this channel, God help them to subscribe to this channel. Help them to listen to this message. Forgive my sins and shortcomings. I know whenever I ask something, you always answer me. And therefore, God, you are a great God, God of love and compassion. Keep on giving your grace to our family, to our YouTube channel members and their families and children. We submit them into your care, for I ask this few blessings in Jesus' name. Amen. अजीजों, बहुत जल्दी मैं आऊंगी दूसरे मैसेज के साथ। आप लोग तब तक इसको देखें, और आपने अगर रिकॉर्ड वो नहीं किया है तो इसको आप दूसरों के साथ साझा कीजिए। थैंक यू।